आंखों के सामने होते हुए भी कभी दिखा नहीं, सुनाई देते हुए भी कभी सुना नहीं, कुछ अनसुना, कुछ अनदेखा। ब्लाइंड स्पॉट। किसी चीज की तलाश है, किसी बात का हिसाब है, बिजनेस के संबंध में सवालों का जवाब है, स्ट्रीट स्मार्ट बवाल, कुछ ऐसे भी सवाल है जिन्हें आंसर करते हो जाता बुरा हाल है। पूरा ज्ञान का भंडार है, थोड़ा गुस्सा थोड़ा प्यार है। पॉडकास्ट के इस सफर में हर एक गेस्ट शानदार है, थोड़ी जीत थोड़ी हार है, यहाँ क्वेश्चंस भी शुमार है। आप में से कुछ ये भी सोचते हो बातें कुछ ऐसी ऐसी अच्छी बुरी कैसी कैसी, झूठ की करे ऐसी तैसी, नथिंग बट सच हो ऐसी, थोड़ा रोना थोड़ी हंसी, थोड़ा सिंपल थोड़ी फंसी, कुछ बातें डायरेक्ट दिल से थोड़ी सी हो डिप्लोमेसी। कितने ही लोग मिलेंगे जो जवाब नहीं देंगे, डॉज करते रहेंगे दिल की पासिंग द बक, बट वी कीप ऑन आस्किंग विद अ बिग प्रश्न चिन्ह एंड गेट ऑल द आंसर्स कॉज़ वी डोंट केयर। वेलकम टू ब्लाइंड स्पॉट, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां पे बातें होती हैं डायरेक्ट दिल से। आज ऐसे ही दिल से बातें करने के लिए हम बुला रहे हैं एक ऐसा गेस्ट हु हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द होल विजुअल टेक्नोलॉजी ऑफ इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री। राइट फ्रॉम ड्रोन शूट्स टू 360-degree videos to directional videos to virtual reality to augmented reality, this man has done it all. And this man has pioneered this entire effort of visual technology in India and Indian real estate. I'm talking about none other than the founder of the VR company, Mr. Aditya Thakur. Hi, Yash. Hi, Aditya. Hi. Welcome to Blind Spot. Pleasure. Aditya, I've known you since more than 10 years now. Right. I've seen Aditya Thakur almost single-handedly doing drone shoots and making all that possible for the Indian real estate industry. From there, I've seen you with a sort of a decent setup. Right. And, the setup of VR Guru. From there, today, I'm seeing you with the most technologically advanced setup Right. for visual technology in Indian real estate industry with the VR company. Right. Can you please tell me about this whole journey? Yeah? Because this has been a fantastic journey for the Indian real estate industry, but I just want to know your aspect of this journey. So honestly, Yash, this journey has, not been less than a magical journey, I would say. It's like God paved the way for us. When the journey started, all we knew was a Google Street View, and that was my first introduction with virtual reality. That's how the life started. So honestly, it was when I saw how virtual reality works for the first time. 10 years back, Google was doing, 2013, I was introduced to Google Street View. That was my first, experiment, Correct. how virtual reality works. And Google was doing image learning and everything back then. And when I saw the technology, like you can see 360-degree view of every street, every location across the country. And we were one of the chosen, agency back then where I was, heading that domain. So we got that assignment to, cover locations across India. Right. And few years down the line, when I spent too much time in, Google Street, we won few awards. I was one of the keynote speaker in Hyderabad. I got a lot of opportunity to speak there. We were one of the best agency in Asia. Then 2016, I got this idea, why not build more on virtual reality? Correct. And back then, there were I would say, not even handful of people in India who were into drone cinematics. So I thought, let's start. So I started this journey back then. And we offered drone cinematic shoots as well. It was a hell lot of challenge. I'll explain that in the later part. But people started liking it. Clients started using it a lot. And then from that, we kept on asking the clients what else. We used to understand. So 90% of the clients used to come to us when there was nothing constructed on the land. Correct. And in virtual reality, the challenge was we used to do photography virtual reality. So you need to have a setup ready on the site to build something, right? So a lot of clients used to drop out saying that we don't have anything to show. Dikhayenge kya yahan pe? So we were thinking, what can we do for them? And then we were like, why not create it in 3D, virtual reality? Then we started developing that, and a lot of clients welcomed it with open arms. Then in drone cinematics, usually we used to show empty land parcel. And then we were like, abhi isme kya kar sakte hain? We used to mark the land and everything. We were like, why not superimpose the entire building on the cinematic? है यार, आपका Yeah, feature. so, and that worked out. And like that, I would say this humble journey to what we are today, what we have achieved today a little bit.
going across India, going across countries. That was because of our clients and because of my team. So yeah, that's how the journey was. Brilliant, man, Aditya. And you've given a bird's eye view to Right. this whole industry. Right. From a developer's perspective, like you said, जब कुछ भी रेडी नहीं होता है, Yeah. सिर्फ लैंड पार्सल है, खाली लैंड है, या फिर एक्चुअली उस पर स्लम्स है, या ऑलरेडी कोई दूसरा बिल्डिंग खड़ा है, Correct. वहाँ से आप उसको विजुअली दिखाते हो कि अब इसमें क्या बनेगा, Right. आफ्टर 2 years, 3 years, 4 years, क्या एक्चुअल में कैसा दिखेगा उसका. आई हैव सीन योर डे विजुअलाइजेशंस, इवनिंग विजुअलाइजेशंस, आप उसमें 3D सुपरपोजिशन करके दिखाते हो, सब कुछ दिखाते हो. ये जो बर्ड्स आई व्यू है, जो एक इंडियन कंज्यूमर के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वो जो खरीद रहा है अभी तो उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है, Correct. वो हवे में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, एज गुड एज दैट. Right. बट जब 3 साल 4 साल 5 साल बाद जब मिलेगा, वो कैसा दिखेगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज अ डिसीजन विच इज सो इंपॉर्टेंट फॉर हिम. Correct. एक घर, आई थिंक इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव डिसीजन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ एनीवन्स लाइफ. Correct. ये जो ऊंची सोच है आपकी और जो ड्रोन का बर्ड्स आई व्यू आप देते हो, ये ऊंची सोच का आइडिया आया कहाँ से? सो यश, मैंने आज तक जो भी लाइफ में किया है, लाइक इफ समथिंग एक्साइट्स मी, आई एम लाइक आई वांट टू डू इट, ओके. and it has to be in my domain. Like a lot of things might excite me, but when I saw in 2015, I saw some countries drone 360-degree view of some palace or something, and it was very exciting. When I was like, how did they do it? It was a 360 panorama, and then I was like, if we are able to achieve this with that quality in real estate, I think it can be very helpful for both developers and buyers. So see, developers, the biggest challenge is to show future today, करेक्ट. to show future now. And back then, the only solution to do that was through 3D walkthroughs, 3D visualization, images. And that was, I would say, a limitation. You could only show something in that. सो वी वर लाइक कि एक्चुअल एनवायरनमेंट में बिल्डिंग कैसे दिखेगी, फ्यूचर कैसे दिखेगा. एंड आप बहुत बार देखोगे बिल्डिंग, मतलब जनरली रियल एस्टेट में यही होता है, आधी बिल्डिंग बन गई, माल दिखने शुरू हो गया तो स्पीड में बिकता है. लेकिन सबसे बड़ा पेन एरिया कब है? जब उसने खड्डा खोदना शुरू किया, उसका विजन आज दिखाना है आपको. राइट. सो वी वर लाइक हाउ वी कैन अचीव इट रियलिस्टिकली. आप पूरा 3D एनवायरनमेंट दिखाओगे तो क्लाइंट को भी थोड़ा सा लगता है कि ये आर दे गोइंग टू अचीव दिस. हाँ. सो वी थॉट ड्रोन व्यू से हम लैंड पार्सल का आज दिखाएंगे और उसके ट्रांजिशन दिखाएंगे, हाउ इट्स गोना लुक इन द फ्यूचर. सो हाउ माई हाउस, व्हाट इज़ माई एक्चुअल व्यू फ्रॉम द अपार्टमेंट. सो वी एंटिसिपेटेड. सो मैंने एक्चुअली ये ज़्यादा अचीव इसके लिए कर पाया था कि इसकी डिटेलिंग, बिकॉज आई स्टार्टेड गोइंग एज अ बायर टू वेरियस साइट्स, वाओ. एंड आई टू सी कि क्या मुझे क्वेश्चन, मतलब व्हाट ऑल आई वुड थिंक एज अ बायर, मतलब ये बिल्डिंग, ये व्यू क्या होगा, शाम को कैसा दिखता है, ट्रैफिक का क्या सिचुएशन है. ऑल दीज क्वेश्चंस वर देयर इन माई माइंड. ये आप इतना स्क्वायर फीट बोल रहे हो, दिखेगा कैसा? एंड आई वांटेड दोज आंसर्स, एंड वी स्टार्टेड ब्रिंगिंग दोज आंसर्स थ्रू आवर सोल्यूशन. एंड डेवलपर्स लव्ड इट, clients started embracing it, and that's how we kept on building. Superb, something Aditya. You were saying developers loved it. I'm telling you, I have spoken to end users, the customers. They are loving your work because they are saying that ये मुझे वरना कभी समझ में नहीं आता. a consumer cannot visualize all this. Right. You are actually helping their dreams to get visualized right now. Right. तो ये बहुत important journey है, and especially during the COVID period, because so pre-COVID scene अलग था, post-COVID scene अलग था. प्री-कोविड टेक्नोलॉजी वैसे भी उतना यूज नहीं हो रहा था इंडियन रियल एस्टेट में. आज भी बहुत कम यूज होता है, बट स्टिल थैंक्स टू पीपल लाइक यू कि आप अभी डेवलपर्स को समझा रहे हो कि ये कितना हेल्पफुल है. बट फ्रॉम अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इट वॉज वेरी हेल्पफुल पोस्ट कोविड और ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो, वेयर कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद थी, सेल्स ऑलमोस्ट ठप हो गया था. डेवलपर्स कुड रीच कंज्यूमर्स ओनली थ्रू टेक्नोलॉजी. करेक्ट. There your tools were a boon, like a blessing कि एक कंज्यूमर के लिए भी और एक डेवलपर के लिए भी. तो ये जो प्री कोविड पोस्ट कोविड ड्यूरिंग कोविड का जो जर्नी है, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन मी कि इसमें हाउ डिड यू कंट्रीब्यूट टू द रियल एस्टेट इंडस्ट्री? आपके लिए क्या ट्रांजिशन था ये? मेरे लिए बहुत बड़ा ट्रांजिशन था. आई वुड से इट वाज अ लाइफ चेंजिंग ट्रांजिशन. ओके. सो टिल 2019-20 मतलब मुझे अभी 14 साल हो गए इंडस्ट्री में. करेक्ट. एंड तब तक मुझे अभी भी याद है, मैं बैग उठा के हर डेवलपर के पास जाता था.
उनको समझाने की कोशिश करता था कि वाई यू नीड दिस, हाउ इट्स गोना मेक योर लाइफ ईजी, एंड बहुत एजुकेशन, आई हैड टू एजुकेट अ लॉट. यस, स्पेशली जो यंग जनरेशन आती थी वो समझते थे, जो ऑलरेडी प्रीवियस जनरेशन हैंडल कर रही है उनको थोड़ा समझाना डिफिकल्ट था फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि उनको पता है माल एक तरीके से बिकता है. बट इंडस्ट्री वॉज इवॉल्विंग करेक्ट. एंड उसका इम्पैक्ट आने वाला था फ्यूचर में, बट वो दिख नहीं रहा था तब. Right. तो बहुत समझाना पड़ता था. टिल 2020 आई टू गो कि सर ये पहले एडुकेट करना पड़ता था, फिर उनके लिए नीड बनाना पड़ता था कि दिस इज हाउ इट्स गोना बी, देन कन्विंस करना पड़ता था क्लोज. तो इसमें एक बहुत मेरा एक एक पिच 2-2 ढाई घंटा चलता था. करेक्ट. जैसे ही 2020 आया कोविड, लाइक दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, इन माई वर्किंग लाइफ, दैट आई गॉट अ ब्रेक. कि मतलब आप करना क्या है, यू नो, दैट 1 month फॉर एवरीवन इट वाज लाइक दैट. बट आई वाज वेरी, तभी वो टेंशन में था कि यू नो सैलरीज क्लियर करने हैं, बट स्टिल पीपल आर देयर, राइट? एंड दीज वर टैलेंट, आई वर चोजन टैलेंट दैट वी हैड. क्योंकि ये इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंज था, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मुझे था, लेकिन फर्स्ट मूवर एडवांटेज के साथ बहुत चैलेंजेस आते हैं, ऑफ कोर्स, बिकॉज यू डोंट गेट रेडी टैलेंट, ऑफ कोर्स, राइट? सो आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू लूज दिस टैलेंट, आई वांट टू, एंड टीम बनती नहीं है ऐसे, राइट? सो अप्रैल या मई, आई डोंट रिमेंबर विच मंथ, मुझे कॉल आया एक क्लाइंट से, जो लाइक कि आदित्य एक NRI क्लाइंट है, इन्वेस्ट करना है प्रॉपर्टी में, एंड यू नो वी वांट टू शो आवर अपार्टमेंट टू देम एंड वी वांट टू शो द व्यूज़. एंड कोविड चल रहा है, एकदम लॉकडाउन वाला भयंकर टाइम. यस. तो आई वाज लाइक क्या लोकेशन है, एंड दैट प्रॉपर्टी टर्न्ड आउट टू बी लाइक 2 blocks अवे फ्रॉम माई हाउस. ओके. आई वाज लाइक मैं शूट कर लूँगा भले ही जाके, लेकिन आई वांट टू डू इट, आई वांट सम वर्क, यू नो, ड्यूरिंग दैट टाइम. एंड मैंने कर दिया वो, somehow I got some solution and वो लाइव हो गया. And the news went out in the market that this is happening, you know, and this guy is doing it. Right. And suddenly the calls started pouring in कि you know हमको भी shoot करना है, and somehow God is kind, you know, like I got so many opportunity कि वहाँ पे एक बंदा था मेरा कोई और लोकेशन पे था. I shot pan India during that time. And जैसी वो चीज़ें लाइव होना शुरू हुई प्लेटफॉर्म्स पे, एंड क्लाइंट स्टार्टेड सीइंग दैट रिजल्ट, हमको सैम्पल फ्लैट नहीं बनाना पड़ रहा है, हमको एम्यूनिटी पूरा बना के बेचने की ज़रूरत नहीं, हम आज दिखा सकते हैं ये फ्यूचर. तो जैसे वो दिखना शुरू हुआ, सडनली मेरे पास काफ़ी बिजनेस डेवलपमेंट की टीम भी थी. आफ्टर दैट वो सिर्फ इनबाउंड इंक्वायरीज उठा रहे थे कि आज पोस्ट कोविड आई डोंट थिंक सो वी हैव एवर डन अ कोल्ड पिच. करेक्ट. इट इज़ लाइक ये प्रोजेक्ट है, ये करना है, एंड अब नीड बन चुकी है. ये एक ऐसा प्रोडक्ट बन चुका है कि सबको चाहिए. करेक्ट. इट्स लाइक अब कैसे क्या क्या बनाना है उसके अंदर, वी हैव डिजाइन दैट. सो पोस्ट कोविड आवर बिजनेस ग्रू मल्टीपल एक्स. सुपर. इट वाज लाइक journey went up like this. Super, so it was blessing in disguise. Amazing आदित्य. ये बहुत ही brilliant journey था actually सबके लिए. For the developers also, like you said, you gave them a solution that was the need of the hour. उन्होंने सोचा नहीं था कि ऑनलाइन समझा के भी सेल हो जाएगा. But you know, wherever I discuss anything with any promoter of any developer, this point always comes up कि यार वो जो कोविड का टाइम था वहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी यूज़ करके you know we did sales, we did online sales that time. और वो टेक्नोलॉजी जब मेंशन होता है तो 90% ऑफ द टाइम्स आपका ही नाम निकलता है, बिकॉज ऑफ कोर्स मतलब टुडे लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, you know you are the leader in this segment, and you know you've done some brilliant work. I've myself seen you know, so I've been your client probably 4-5 times from different developers, and you know I've seen that journey also, you know, when initially you also had to convince, you know, the marketing sales heads and the promoters कि भाई ये ज़रूरी है. Today you're right, वो समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. But ये blind spot है, honest question, honest answer expect करूँगा. That need तो बन गई है, need is established. तो अभी वो pitch करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. But how much does a developer agree, you know, to spend, which is the ideal spend, उसमें से वो अभी कितना अग्री करता है, या उसको कितना वैल्यू दिखता है, या वो अपने मार्केटिंग बजट्स में क्या वो आइडियल बजट रखता है इतने इम्पोर्टेंट टूल के लिए? सी बजट डेफिनेटली रखते हैं. आई हैव नेवर फेस्ड अ चैलेंज जहाँ पे बजट खर्चा करने का इंटेंट है कि नहीं वो क्वेश्चन है. बजट सबके पास है, राइट? और वो इंटेंट ऑफ कोर्स, व्हाई विल आई इन्वेस्ट इन समथिंग विच आई एम नॉट कन्विंस्ड. सो इफ़ यू हैव नीड है डेफिनेटली, एंड इफ़ यू आर डिलीवरिंग, मैंने रियलाइज़ किया कि जब आप वो क्वालिटी काम दिखाते हो ना,
पीपल आर लाइक कितना लेगा बता और क्लोज कर दे. हाँ, इट इज़ लाइक दैट. ऑफ कोर्स. So, मतलब our strike rate is 9 out of 10. Like if you're meeting 10 Brilliant. people, 9 of them will be like, और वो एक होगा भी नहीं तो क्योंकि बजट में बहुत डिफरेंस आ रहा है वगैरह. बट देन लेटर हो जाता कहीं ना कहीं डील, यू नो इट वर्क. सो सी आई वांट टू मेक श्योर दैट एक मेंटालिटी है, आप 10 रुपये दे रहे हो तो आपको उससे ज़्यादा की वैल्यू क्या एटलीस्ट उतना तो चाहिए. करेक्ट. वी वांट टू मेक श्योर कि हम लोग वो वैल्यू दें उनको. एंड वी ट्राई टू गिव समथिंग एक्स्ट्रा ऑलवेज. विद इन एक कोई क्लाइंट कुछ कराता है तो उसमें प्लस देने के लिए हम कोशिश करते हैं हमेशा. सो हाँ, रियल एस्टेट में है वो, पहले था कि बजट में बहुत खींचा था नहीं. एंड बट अभी नहीं होता उतना, आई वुड ऑनेस्टली से, बिकॉज अभी जो नई न्यू जनरेशन देर आर, यू नो, जो हैंडल कर रहे हैं तो इमीडिएटली अंडरस्टैंड है, लाइक ठीक है चल ये तो यार इतना खर्चा तो होना ही है. एंड रिकवरी मिलता है उनको तो वाई नॉट. Correct. You mentioned this second generation of developers. Yeah. And so let me post your question on that. Yeah. Yes, काफी developers में there's a significant amount of developers where the second generation has taken over. Correct. Brother sisters हैं या दो लोग हैं. Correct. UK से MBA करके आ रहे हैं. Right. एक marketing head कर रहा है, एक sales head कर रहा है. Correct. But उसमें अभी भी decision making father का ही है. Correct. तो सेकेंड जनरेशन कन्विंस हो रहा है Right. आपके टेक्नोलॉजी से, दे सी द वैल्यू एड, Right. बट पैसे का डिसीजन तो फादर को लेना है. Right. हाउ डू यू डील विद दिस, बिकॉज ये प्रॉब्लम आपको आता होगा. Sir, that's where again I have to educate the father. करेक्ट. सो अगर मुझे वो प्लेटफॉर्म मिलता है, सी फॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टैंड, दे आर लाइक भाई तेरा प्रोडक्ट है तू ही बता उनके सामने जाके. क्योंकि हम लोग वो कन्विंस नहीं कर पाएंगे द वे यू कैन एक्सप्लेन द प्रोडक्ट. ऑफ कोर्स. सो व्हेन आई मीट देम एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर एप्रीहेंशन, लाइक मतलब क्या बोलेंगे. उनका एक ये होगा कि अरे इतना खर्चा इस पर क्यों करना है, या तो उनका हमको बताना पड़ेगा उनका कॉस्ट दूसरी जगह पे कैसे बच रहा है. आज आपको एक प्रीमियम सैम्पल फ्लैट बनाने के लिए यू हैव टू कीप अ फैट बजट. ऑफ कोर्स. मैं आपको 10 फ्लैट बना के दे रहा हूँ, राइट. मैं उसके 1/10 बजट में, या बोल लो आप वो बजट ही आपको यूज़ नहीं करना है, एंड वहाँ पे आप दिखा सकते हो पूरा प्रॉपर्टी, एंड देन वहाँ से वो सुनना शुरू करते हैं कि ठीक है चलो ये बजट, मतलब बाद में फ्लैट बना लेना आप, नहीं अगर आपको लगता है तो भी, यू नो सी आई डोंट से कि नहीं मैं ये कर रहा हूँ तो आप फ्लैट बनाओ ही मत. बट बहुत बार है ना प्रीमियम प्रोडक्ट होता है, या तो अभी जैसे एक हम लोग एक प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं पुणे में, इट्स अ बजट होम. बट उनका कैसा है ना कि जॉइंट फैमिलीज आते हैं, या न्यूक्लियर फैमिली भी आती है. सबको आप सेम घर नहीं दिखा सकते. अभी आप वो सोचोगे कि न्यूक्लियर फैमिली आएगी, वो बोलेगा यार मेरे को ये एक्स्ट्रा रूम में ना वर्क स्टेशन चाहिए. जॉइंट फैमिली आएगी, उनको पूजा रूम चाहिए. अब आप उनके लिए सबके लिए तो बना नहीं सकते. एंड रियल एस्टेट इज़ ऑल अबाउट, अगर वो फ्लैट देख के मेरे मन में आ गया ना, यहाँ पे बैठ के मैं टीवी देखूंगा, बालकनी में मेरे को चाय पीनी, वो मन लग गया, हो गया, माल बिक गया. यस, दैट्स हाउ इट वर्क्स. करेक्ट. सो वो कैसे क्रिएट करोगे आप? देयर हैज़ टू बी दैट इमोशन, राइट. तो जब वो देखते हैं ना उसमें कि वो अचीव हो रहा है, कन्विंस हो जाते हैं. और जहाँ पे नहीं होगे वी कैन जस्ट ट्राई, राइट. तो रिलेशन है, कहीं ना कुछ वर्क होता ही है. बट इन माई केस टचवुड इट हैज़ ऑलवेज वर्कड. यू नो इनफैक्ट दे हैव लव्ड इट, दे हैव एनकरेज कि ये नहीं ये भी करो व्हेन दे सी दैट. So if you genuinely try to give a right solution, it works. True. And अगर कुछ apprehension आया तो आपको वही समझना है, उसको solve करना है. Very true, very true. That's what we try. No, absolutely correct. In fact, so when I have been your client from various developers, right. and तो एक तो होता है that you have to convince the developer. Then internally I have to, as a strategy head, I have to convince the developer कि हाँ this is worth it. Right. So I think that journey, I used to pitch by saying that, like you said, कि सैम्पल या शो फ्लैट बनाने में एक तो इतना खर्चा जाएगा, दूसरा टाइम जाएगा. राइट. आज ये तो आज मिल जाएगा अपने को. सेकंड, अगर वो बना भी लिया बट स्लैब्स खड़े करने में तो टाइम जाएगा. करेक्ट. नाउ टुडे इफ अ कंज्यूमर वांट्स टू सी दैट इफ आई एम बाइंग ऑन द 29th फ्लोर तो मेरा व्यू क्या होएगा. करेक्ट. those things only you can show from your tools. Right. Aaj I can show them the views from different angles, from different floors. 8th फ्लोर से क्या होएगा, 16th से क्या होएगा, 24th से क्या होएगा. आई कैन शो दैट. इवनिंग में क्या व्यू दिखेगा, मॉर्निंग में क्या व्यू दिखेगा, आई कैन शो दैट. ट्रैफिक का क्या सिचुएशन होगा, आई कैन शो दैट. करेक्ट. सो ऑल दोज थिंग्स यूज्ड टू बी माई ब्रिज टू कन्विंस द फास्ट ट्रैक करने के लिए उसको, और द फाइनर एस्पेक्ट्स ऑफ इट. तो वो ब्रिज हो जाता था, एंड दोज योर ओनली टूल्स यूज्ड टू हेल्प मी टू इवेंचुअली गेट द येस फ्रॉम द डेवलपर्स फर्स्ट जनरेशन.
जो आप बोल रहे हो बहुत ये चीज़ जो आप सोल्यूशन दे रहे हो ना, बहुत बार वो जनरेशन को लगता है अरे ये मेरे को दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं, दिस इज टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन। हाँ वो भी है। बहुत बार ये हो जाता है कि उनको लगता है इतना दिखाना चाहिए, बिकॉज देखिए कैसे आप आज के डेट में कुछ छुपा नहीं सकते। करेक्ट। एवरीथिंग इज ओपन, राइट? आपका विंडो व्यू ये होने वाला है, यहाँ पे ये आने वाला है, तो माइट एज वेल ओन इट एंड शो इट कि चलो ये आने वाला है, Very बट true. मैं आपको फ्लैट में वो बेटर करके दे रहा हूँ। वेरी ट्रू। आई एम गिविंग यू समथिंग, ये लेवल का लॉबी दे रहा हूँ मैं आपको, प्रॉपर्टी के अंदर इतना ऑटोमेशन दे रहा हूँ, दिस काइंड ऑफ वी हैव वर्कड ऑन टू दैट डिटेलिंग कि आपको कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी मैं ये डिलीवर कर रहा हूँ। वेरी ट्रू। सो आई एम लाइक यू हाईलाइट ऑन, यू वर्क ऑन योर यूएसपी ना। आप ये क्यों सोच रहे हो मेरे इधर नाला जा रहा है बाजू में या उधर वो जा रहा है? अभी माल तो यार हर जगह बिक ही रहा है, ट्रू ट्रू। एवरीवेयर इट। तो हम लोग को दिखाना है कि हमारी यूएसपी हम कैसे हाईलाइट कर सके। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। देखिए ये जो आप बोल रहे हैं ना जर्नी, ये जनरेशन वाला, आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड, सो 2011-12 में रियल एस्टेट सोशल मीडिया पे आना वाज अ बिग, यस। भाई नई नई गाली पड़ेगी, yes. ऐसा सोचते थे लोग। यस यस। कि लेकिन टाइम इतना फास्ट चेंज हो रहा है। देन वी स्टार्टेड मीटिंग डेवलपर्स एंड वी स्टार्टेड ऑनबोर्डिंग देम फॉर सोशल मीडिया। जब हम उनका कैंपेन, वी यूज्ड टू मेक द पेज लाइव, तभी इतना पेड कैंपेन वगैरह होता नहीं था, द प्रेजेंस यूज्ड टू बी देयर। थिंग्स स्टार्टेड वर्किंग आउट एंड दे वर लाइक कि अब तो हट नहीं सकते, ये टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, अगर आप नहीं करेंगे कोई और कर देगा। वेरी ट्रू। आपका पेज नहीं कोई और बना देगा। गूगल स्ट्रीट व्यू में आज आप पेज नहीं बनाओगे, 10 ब्रोकर बना देते हैं। ट्रू ट्रू। राइट। सो लाइक हमारे पास सही भी आते बात हैं है, बहुत सारे सही ब्रोकर, बात है, सही ये बात है। करना है। सो इट इज़ लाइक यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू ओन इट। एंड एक सिंपल बात, आज की डेट में आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी लेने जाओगे, इवन इन Tier 2 मार्केट, या चलो मैं सिटी की बात करता हूँ, एक लोकेशन पे आप चले जाओ, एक प्रॉपर्टी मैं देख रहा हूँ जहाँ पे सब टेक में मैं देख रहा हूँ फ्यूचर, दिस इज द विंडो व्यू, दिस इज हाउ माई फ्लैट इज गोइंग टू लुक लाइक। कस्टमर समझ रहा है, अच्छा इतनी ही इज़ वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोडक्ट। मैं दूसरे साइड पे आ रहा हूँ, वो ब्रोशर पे ही मुझे समझा रहा है। आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दिस। करेक्ट। उधर ही ऑफ हो जाता है। मतलब एज अ बायर मैं तो बोलूँगा यार, पेपर पे आप दिखा रहे हो, राइट। एक्साइटमेंट कैसे बताओगे आप प्रॉपर्टी का? सो देन दे अंडरस्टैंड, नहीं यार हमको एक बेंचमार्क सेट करना है करेक्ट। हमारे प्रॉपर्टी के लिए भी, एंड देन इट हैपेंस। मैंने बहुत सारे ट्रेडिशनल डेवलपर्स को एक टेक प्लेटफॉर्म पे लाया एंड दे आर वेरी हैप्पी एंड दे रिपीट इट ऑन एवरी प्रोजेक्ट नाउ। Amazing, yeah, amazing. No, I've seen this, happening, and I've seen orthodox or traditional developers also getting into technology now. Right. Thanks to your tools on that. I've seen you also educating a lot of stakeholders of this industry, through forums of, be it MCHI Credi, be it, the associations of these brokers, or even platforms on discussions on RERA. So. When you talk about your technology in these forums, I've heard one part of it where you also talk about how the regulator has changed the face of this industry and how it has helped you as well. Can you tell me, or can you tell our audience कि regulator आने के बाद, रेरा आने के बाद आपको क्या फर्क पड़ा? रेरा आने के बाद एक तो पहले थोड़ा सा रेजिस्टेंस था, डर था थोड़ा सा इनिशियली कि नहीं ऐसे दिखा सकते हैं क्या, वैसे दिखा सकते हैं क्या। पहले बहुत बार ऐसे some developers have misrepresented the properties. Correct. तो उसकी वजह से काफ़ी दूसरों को भी ये था कि नहीं ऐसे दिखाया क्या, वैसे दिखाया क्या। True. तो पहले तो इनिशियली एक समझाने में, हमको खुद समझने में टाइम गया कि एज पर रेरा गाइडलाइंस ये दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते हैं। देन वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि रेरा इज सेइंग जो भी है एज इट इज दिखाओ, डोंट डू मैनिपुलेशन। करेक्ट। तो देन वी वर लाइक ठीक है चलो, आप अगर एक 500 स्क्वायर फीट का घर दे रहे हो तो मुझे अपने एक्सपीरियंस के अंदर वॉल टू वॉल पहले खड़े करना है प्रॉपर। अब इंटीरियर में जैसा बनाना चाहता हूँ वैसा बना सकता हूँ, राइट। द प्रेजेंटेशन कैन बी, बिकॉज आपको मैं घर दे रहा हूँ, बट उनको पहले लगता था कि क्लाइंट्स को लगेगा कि आप ऐसा ही घर दे रहे हो। देन रेरा गेव अ डिस्क्लेमर कि क्या क्या डालना है। करेक्ट। तो डिस्क्लेमर्स आ गए वहाँ पे पिक्चर में, एंड देन ट्रांसपेरेंसी बढ़ गया मैं बोलूँगा उसके बाद में। तो वो एक इनिशियल रेजिस्टेंस आया, इनफैक्ट बाद में फिर ड्रोन व्यूज़ ये वो एक्चुअल व्यू और लगने लगे लोगों को कि ठीक है ये व्यू एक्चुअल है, दिस इज हाउ इट्स गोना लुक लाइक, एंड अपार्टमेंट एम्यूनिटीज़। देन वी स्टार्टेड पुटिंग मेजरमेंट्स इन दैट, तो आप अपार्टमेंट के मेजरमेंट देख सकते हो। सो यू आर नॉट गिविंग एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन। तो बायर के लिए भी अच्छा है, डेवलपर के लिए भी अच्छा है, बिकॉज ही कैन सेल विथ कन्विक्शन। True. You are not mis-selling anything,
एंड बायर को भी पता है, मेजरमेंट भी लिख दे और क्या देगा इन्फॉर्मेशन बंदा। Absolutely. सो या ऐसे मुझे बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट इनिशियली खाली एक लगा एक फेज में, एंड बाद में मुझे लगा कि और बढ़ रहा है ये। True. यू नो इट इज इवन एम्ब्रेस्ड मोर। Correct. Because you have actually validated the transparency aspect of what RERA is saying. Yeah. You know, आज इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी पहले नहीं थी, रेगुलेटर आने के बाद वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, because everything has to be in the interest of the customer. Correct. So I think you've actually validated the transparency, and that's why we've seen the growth after the regulator has, jumped in this industry. ऐसे बहुत सारे आए थे, GST का हुआ था, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, एंड वी वर स्टार्टिंग द बिजनेस। Correct. पीपल वर लाइक यू आर गेटिंग इन द रॉन्ग इंडस्ट्री एट द रॉन्ग टाइम, Right. व्हाई आर यू डूइंग इट? Right. I was deaf to all those things. मुझे लगता है I believe in this product and I think see, आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हो जो आपको पता है it is going to help, तो वो बिकना ही है, मतलब it is going to solve that problem. And of course देखो, एक इंडस्ट्री का एक नॉर्म है, अगर आपको लग रहा है कि आप ये एक प्रोडक्ट लेके ज़िंदगी भर बेचोगे या ये एक प्रोडक्ट है, तो ये it's not gonna work. Correct. You need to keep on innovating. You need Very to keep on listening, and that's the reason मैं खुद जाके मिलता हूँ डेवलपर्स को. I don't rely on BDs. Correct. Because जब आप उनसे बात करते हो ना, उनका पेन पॉइंट पता चलता है. True. आज वो हमसे बहुत ज़्यादा, हम तो एजेंसी है, these guys are managing a lot of things. Yeah. So उनका पेन पॉइंट उनसे बात करके पता चलता है, यार मेरा ये चैलेंज है, क्लाइंट को समझ नहीं रहा है कि हम क्या ला रहे हैं, क्या लेवल की डिटेलिंग ला रहे हैं, इसके लिए प्राइस नहीं मिल रहा है, सो कैन यू डू समथिंग अबाउट इट. सो हमने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में कि एम्यूनिटी इतना हम लोग वाव ला रहे हैं, बट दे आर कंपेयरिंग इट विद दैट प्रॉपर्टी जहाँ पे बहुत बेसिक मिल रहा है, वो भी बोल रहा है मैं एम्यूनिटी दे रहा हूँ. सो वी फिगर्ड आउट कि इसको कैसे प्रेजेंट करना है. इट इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन. True. एंड वी कुड क्रैक इट. सो या वो ब्रिलियंट है आदित्य. आई थिंक ये एस्पेक्ट आप बहुत अच्छे से लेके आए हो, एंड you've given that value add of that technology in real estate. Real estate has been very slow in adapting technology, though on any other side, on lead management or any other side you look at it, from market research tech or any other side, they've been very slow in adapting it. But I think visual tech mein you have been instrumental in convincing them to adapt this technology. You've shown them that value add, और इसके लिए शायद visual tech में technology adaptation बहुत ज़्यादा आया है real estate में in today's times. So do you think you have changed that outlook of the Indian real estate developer? See, I wouldn't say I have changed it. Times changed. And see, they were it's not that real estate adapts the technology late, but it is about उसमें बहुत सारे लाइन्स है यूटिलाइजेशन के. उनको ऐसा होता है कि मैं ये बनाने के बाद मेरा एंड यूज़र, मतलब मेरा सेल्स वाला दिखाएगा क्या. मतलब बहुत बार ऐसा होता है उसको आदत है पेपर पे माल बेचने की, ब्रोशर दिखाने की, तो उनको लगता है कि ये ब्रोशर ही दिखाएगा, मेरा ये इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगा. बहुत बार ये लगता है उनको. सो वी केप्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग की और क्या चैलेंज है. देन उनका इकोसिस्टम उनको चेंज नहीं करना होता. जैसे मैंने ऑलरेडी एक इन्वेस्टमेंट करके एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है, आपका ये उसमें फिट होगा क्या. सो व्हाट आई डिड, मैंने बोला आपको कोई कुछ चेंज नहीं करना है, हमारा प्लेटफॉर्म ही अलग है. इट इज़ वेब एनेबल्ड, इट इज़ ऑफलाइन, इट इज़ ऑनलाइन. मतलब ऑनलाइन आपको कहीं पे भी एक्सेस करना है वो दिया हुआ है. तो एक उनको फ्रीडम हो गया कि मुझे अगर ये टेक्नोलॉजी डालना है तो मेरे को मेरा प्लेटफॉर्म चेंज नहीं करना है. आई डोंट हैव टू चेंज एनी जैसे उन लोग बोलते हैं हमको CRM में इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे या वहाँ पे नहीं बैठेगा. तो ये सारे प्रॉब्लम की हमने लिस्ट बनाई मेरी टीम ने कि क्या क्या हो सकता है. राइट. एंड देन वी फिगर्ड आउट कि ये सारे रीजन के लिए ये अडेप्टेशन नहीं हो रहा है. They have that fear. Right. And then one by one we solved everything. You're like ठीक है, आपको ये नहीं करना है, आपको इसमें CRM में इंटीग्रेशन का ये इशू आ रहा है, ये API है, नहीं रखना है मत रखो, इसको ज़बरदस्ती आपको VR पे ही चलाना है, कंपलसरी नहीं है. दो इट्स कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी. आप इसको वेब एनेबल्ड कर दो. हमने वो सिस्टम्स लेके आए जहाँ पे आपका अगर टीवी नॉर्मल इंस्टॉल्ड है साइट पे, विच इज़ नॉट अ टच स्क्रीन टीवी, हमारा सोल्यूशन आप प्ले कीजिए वहाँ पे वर्चुअल टेक, आपका टीवी टच स्क्रीन हो जाएगा. वाओ. सो इट इज़ बेसिकली उनके करंट सिचुएशन को भी हमने बेटर किया. सुपर. एंड ये रिक्वायरमेंट हमको बहुत बार आता था. अंबरनाथ कल्याण साइड भी हम जब जाते थे, सी वहाँ पे पर स्क्वायर फीट बजट ही नहीं है ज़्यादा बड़ा खर्चा करने के लिए. राइट. करेक्ट. तो उनको उसमें बट टेक दिखाना है. सो वी वर लाइक व्हाट बेस्ट कैन वी डू.
सो उनका एक वो इकोसिस्टम में मेरा प्रोडक्ट कैसे बैठ रहा है मैं हमेशा वो देखता हूँ. सो वी अडेप्टेड टू देयर सिस्टम, सो दे डिड नॉट अडेप्ट टू टेक्नोलॉजी. वी ट्राइड अडेप्टिंग आवर प्रोडक्ट टू देयर टेक. So that's how it worked. And I never saw that resistance. I always saw कि ये knowledge gap है, उसको हम कैसे fill करेंगे. So if you have information, knowledge, then you can do that. No, I agree. I think, yeah, you're right. You took that extra effort of bridging that gap, and going one step forward from your side, and that's why the developers also came one step forward Right. to embed your technology with their existing projects. You spoke about virtual reality, and I though have experienced your virtual reality products, but many of the developers are still not using it to the fullest. What do you think is missing there? Why are they not trying to adapt virtual reality? Because I have seen it. I have experienced it myself for one of the projects where I was heading sales strategy. I could actually feel that I'm standing in the project, experiencing all the amenities by myself, walking through those amenities, walking through the lobby, going up the lift, entering a unit or a flat on, say, 20th floor, and then going to the balcony and enjoying the view. I could actually feel it only with, this gear that is lying there. Correct. And whereas that time, that project was not even on the excavation stage. Right. It was just ground zero करके रखा हुआ था. So at that stage, as a consumer, I could experience all of this. Right. When there is such a brilliant technology available, what is the resistance on penetration of such technology across the developers? Because I see very few developers using this to the T. You're talking about the VR gear or virtual like visual tech? Visual tech. See, visual tech एक तो पहली बात पिक्चर में तब आता है जब आपका एक लॉन्च चल रहा है या प्रोडक्ट का स्टेज क्या है. लाइक देयर आर लॉट ऑफ क्राइटेरियाज टू इट व्हेन डू यूज इट. सो एक तो सब लोग यूज नहीं कर रहे हैं विच मेक्स मी इवन मोर कन्विंस कि देयर इज अ ह्यूज मार्केट पोटेंशियल. वो तो है. जितने लोग नहीं कर रहे हैं मुझे पता है आज नहीं कल तो करेंगे. वो तो है. बिकॉज देयर इज नो एस्केप टू इट. यू विल हैव टू adapt to it. Absolutely. या तो you'll be forced to adapt to it because things will move that way. मतलब आज क्यों नहीं कर रहे, समझ में नहीं आ रहा. इतना brilliant tool है. होता है कि उनको लगता है कि मैं lot of times developer think कि मैं buyer हूँ तो मैं देखता क्या ऐसे या मुझे क्या देखना है. बायर उतना इवॉल्व नहीं है जैसा आप सोच रहे हो. करेक्ट. वो लेवल पे नहीं सोचता. अभी जैसे मैं सोच रहा हूँ उनको उनकी इन्फॉर्मेशन राइट वे में चाहिए. करेक्ट. व्हाट दे वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रॉपर्टी. सो पहले वो समझाना पड़ता है कि डिफरेंशिएशन कहाँ है दैट वन. एंड दूसरा दे वांट टू ट्राई देयर मेथड्स फर्स्ट जो उनका स्टैंडर्ड मेथड है. दैट इज द प्रॉब्लम. राइट कि उनको नहीं हम लोग ऐसे ही लॉन्च करते हैं विच इज़ फाइन, विच इज़ नथिंग रॉन्ग एंड मैं तो बहुत बार जब बैठता हूँ डेवलपर्स के साथ मुझे कभी अगर ऐसा बोलता है अरे हमारा तो माल एकदम फटाफट बिक रहा है हमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो मैं हमेशा बोलता हूँ देन डोंट डू इट. करेक्ट. बट मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हमको ये करना है बट हमारा माल इतना स्पीड में बिक रहा है तो मैं बोलता क्यों खर्चा कर रहे हो. सही बात है. मतलब नहीं है ना. क्योंकि क्या होता है देखिए मेरा इंडस्ट्री में रिलेशन जिसके साथ भी इतने सालों से बना है दैट इज़ बिकॉज ऑफ गिविंग जेन्युइन एडवाइस. ऑफ कोर्स. कहीं पे भी आपको लगता है कि आपने कोई चीज़ सेल की और कस्टमर को कल रियलाइज होता है अरे यार आई वाज ये मिस सेल किया मुझे. योर डोर्स आर क्लोज्ड. ट्रू. एंड इट्स सच अ टाइट नेट नेटवर्क. या. सो उन लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं या जो भी है दैट इज़ बिकॉज या तो उनका माल मूव हो रहा होगा वो या तो उनको ये चीज़ का किसी ने एक्सपोजर ठीक से दिया नहीं है. They have not understood the power of it. They have not understood the implementation of it कि ये कैसे होता है. And एक बार वो समझ जाते हैं तो हो जाता है. तो मुझे बहुत ऐसे कम इनफैक्ट आई एन्जॉय दोज मीटिंग्स जहाँ पे वो रेजिस्टेंस आता है बिकॉज इट पॉलिशेज माई स्किल्स फर्दर. क्योंकि उनसे बात करके ना हर जनरेशन का एप्रीहेंशन डिबेट पता चलता है कि कहाँ पे. एंड आई गो बैक टू माई टीम एंड आई एम लाइक कि ये एज ग्रुप को अगर तुम्हारे पेरेंट्स के लेवल के कस्टमर को आपको दिखाना होता व्हाट वुड हैव बीन द बेस्ट वे. एंड हम लोग एक्चुअली बैठ के डिस्कस करते हैं कि मेरे मॉम डैड तो ये पहन के ऐसे उसको तो चक्कर आ जाता उनको तो ये हो जाता. राइट. तो एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड यू कैन नॉट लव योर प्रोडक्ट सो मच कि नहीं ये तो बेस्ट ही है ये ऐसे ही बिकेगा. यू हैव टू बी ओपन. ऑफ कोर्स. सो वी ट्राइड अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग. देन वी वर लाइक नहीं इट इज. मैं इनफैक्ट लोगों को कभी पुश ही नहीं करता था कि आप VR पे दिखाओ गियर पे दिखाओ.
क्योंकि मुझे खुद को लगता था गियर्स वर नॉट दैट इवॉल्व until I experienced Quest 3. अभी विजन प्रो भी काफ़ी कुछ कर रहा है. राइट. सो उसमें इतना रिफाइंड है व्यू. इट इज़ ब्रिलियंट टू ऑपरेट. एंड जब आप वो पहनते हो ना, देन ओनली यूल रियलाइज. इसके पहले क्या हुआ है, बहुत लोग ने ना VR के नाम पे, मैं हमेशा बोलता रहा इंडस्ट्री में VR वॉज आइटम नंबर. बहुत बार मार्केटिंग वाले आके मुझे बोलते थे यार वो एक API है VR करने का, कर दे कुछ तो VR में. मतलब ऐसे कैसे VR कर दे, यू नो. तभी लोग वो VR बॉक्स मोबाइल लगा के करते थे, वो सब चलता था. इट वाज लाइक वो मज़ा नहीं आता था उतना उसमें, बट फॉर दैट टाइम इट वाज कि हाँ कुछ नया देखने मिला. बट नाउ द एवोल्यूशन, दिस टेक हैज़ रीच टू अनदर लेवल. डेप्थ कंट्रोल जो है उसमें लाइडार की वजह से यू आर एबल टू सी एवरीथिंग इन सो मच डिटेल. तो जब वो एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो उनको लगता है हाँ ये कर सकते हैं. या तो उसमें ही बोलेंगे ये VR पे मत दिखाओ, स्क्रीन पे दिखाओ, हमको स्क्रीन समझ रहा है, ठीक है. देन उनको ये भी अप्रीहेंशन होता है मेरा माल इतना प्रीमियम है, तो कोई HNI वो आके पहनेगा क्या, दिखेगा क्या. हम लोग बोलते हैं iPad पे दिखाओ, स्क्रीन्स पे दिखाओ. सो देन दे अंडरस्टैंड कि उनका जो फिक्सेशन होता है ना कि ऐसे ही चलती है टेक्नोलॉजी, वो चेंज हो जाता है. लाइक दिस टेक्नोलॉजी इज वाटर, इट कैन अडेप्ट टू any form. Superb, yeah, Aditya. And I think एक और भी aspect है where people have now started adapting to these things is because, like you said, you are the only BD. You don't rely on, a BD team or something. And the way you try to bridge that gap is, I've seen that, you bring it out from the customer's point of view. कि consumer को क्या देखना चाहिए या consumer को क्या देखना है, based on the need on why he wants to buy the house. तो वो जो customer centricity वाला जो angle है आपका, which comes very naturally in your pitch, I think that is helping this adaptation of visual tech in real estate industry in India. Yeah, though it's a little slower than I anticipated and I wished, but yeah, I've seen developers now getting convinced to adapt to visual technology in India. Real estate में अगर आपने आप कुछ भी बेच रहे हो डेवलपर्स को, अगर आप खुद बायर नहीं हो प्रॉपर्टी के, आप कभी पेन पॉइंट समझ ही नहीं सकते. वेरी ट्रू. आप कभी भी जाके अपना प्रोडक्ट ही बेचोगे, नहीं तो उनको सोल्यूशन नहीं बेच पाओगे. करेक्ट. आप जाके BD खोल के लैपटॉप बताएगा मैं ये करता हूँ ABCD, बस दिस इज व्हाट आई डू. तो वो बोले हाँ ठीक है, मतलब हाउ आर यू हेल्पिंग अस, ये टेक्नोलॉजी है. बट व्हेन यू अंडरस्टैंड कि एक बजट होम में क्या चैलेंज होते हैं बेचने के लिए, एक टाउनशिप में क्या चैलेंज होता है, एक अफोर्डेबल लग्जरी में क्या चैलेंज होता है. हम लोग 25 लाख से 100 करोड़ के अपार्टमेंट पे काम करते हैं. माई पोर्टफोलियो इज दैट वाइड. एंड हर सेगमेंट का अप्रोच अलग है. एक ही चीज़ सबको नहीं बेचते हम. वी गिव सॉल्यूशंस बेसिस व्हाट देयर नीड इज ड्यूरिंग दैट पॉइंट. सो मतलब मैं आपको बहुत सारे केस स्टडीज बता सकता था, बट आई डोंट नो इफ आई शुड टेक नेम्स एंड एवरीथिंग बिकॉज कुछ लॉन्च स्टेज पे है, कुछ आ रहे हैं. सो बट काफ़ी ऐसी चीज़ें हमने की है जहाँ पे वी हैव रियलाइज कि नहीं यहाँ पे ये करने की ज़रूरत नहीं है, इतना करते हैं, एंड दैट हैज़ वर्कड. लॉट ऑफ टाइम आई हैव कट डाउन ऑन माई प्रपोजल कि मतलब X नंबर हो रहा है, मैंने बोला कि नहीं यार ये करने की ज़रूरत नहीं है. That's very brave to do. मतलब बहुत वेंडर्स ये नहीं कर सकते हैं. बट बहुत वेंडर्स ये नहीं करते हैं, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी ब्रेव अप्रोच टू हैव. आई थिंक दैट्स आज की डेट में सबसे महंगी चीज़ क्या है? भरोसा. करेक्ट. राइट. आप मतलब हर इंसान जाके बेच रहा है, मेरे पास भी आते हैं बहुत सारे लोग, बट वो जेन्युइन है क्या, वो डिलीवर कर पाएगा क्या, वो क्वालिटी जो बोल रहा है वो दे पाएगा क्या. सो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर वो ट्रस्ट वैल्यू जनरेट कर पाते हो ना, तो कोई भी, ये रिलेशन बेस्ड है, तो कोई भी आके आपको पहले तो डाउट नहीं करता, वो सारे फेजेस निकल जाते हैं. दे आर लाइक कि चल भाई ये प्रोजेक्ट है, क्या करना है. कन्वर्जन फास्ट होता है. पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट. आप जितना जेन्युइनली सोल्यूशन दे पाओगे, उतना आगे का रास्ता सिंपल होता जाता है. वो 10 जन को रेफरेंस देते हैं आपके. सो आई थिंक आई हैव एक्सपीरियंस दैट. एंड बहुत एक अर्ली स्टेज पे मेरी लाइफ में एक मेंटोर ने मुझे समझाया था. So I was a very aggressive business development when I was young. Okay. तो एक बार मैं एक वेबसाइट बेच के आया था at a crazy price. Okay. To a big brand. मतलब 10-15 लाख का बिलिंग हुआ था वो टाइम पे. And then when I came back, my boss was like, इतना महंगा. बोला I thought you'll be happy. You know that
got so much revenue. at this बोलता है it is not about that. You know, now if someone comes and tells them कि ये तो मैं लाख में बना सकता हूँ, 2 लाख में बना सकता हूँ, whatever, he will not trust you in future. True. तो I was upset. मैं बोला यार मैं इतना अच्छा सेल करके आया, इंसेंटिव की बात करो, ये क्या बात कर रहे हो आप? Yeah. But then he is like, see, when it's okay if you sell at a premium, but give them that value. Yeah. अभी आपने ये किया तो give them this also, फोटोशूट दे दो, ये दे दो, वो दे दो. तो वो कल को देखेगा भी तो he'll be like, ठीक है, he took X money, but he gave us so much of value. Very true. So then I realized कि नहीं, you know, you have to, and that worked for me in the future also. So I always believe in that कि अगर आप बहुत genuinely कर रहे हो कोई भी चीज़, तो आपका conviction और confidence इतना होता है ना, तो I mean it pays you even more than वो छोटा मोटा आप सेल जो छोड़ देते हो. True. No, very important lesson. And I think you've learned that lesson very early in your life. You mentioned when I was young, you're still young. So, but I think you've learned that lesson very early in your life. Advantage of starting early probably. Very true. But I think you've made that difference in the lives of Indian real estate developers because of that. Tell me now, you know, you've done it all. You've done drone shoots, you've done virtual reality, you've done augmented reality, you've done superimpositions. Right. What is the next thing that we can expect from the VR company and Aditya Thakur? I'll be very honest with you. I'm not an innovator. I'm a problem solver. Correct. Okay, so I realized it again at an early stage in my life that I'm not you know, Steve Jobs or Mark Zuckerberg. I cannot create something wherein कि मैंने बना दिया, बन गया इतना बड़ा अब तक till now, because I'm learning. Right. फ्यूचर में क्या है, अगर कहीं पे चैलेंज है तो सोल्यूशन आ जाएगा विजुअल टेक में, मैं बना दूंगा कुछ ना कुछ. Correct. उतना पता है. बट आई नो कि अभी नियर फ्यूचर बताता हूँ और आगे का तो नहीं बता सकता. 3D इज गोइंग टू गेट रिफाइंड. AI की वजह से थिंग्स आर गोइंग टू चेंज मैसिवली. हम लोग खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इतने सारे वर्चुअल. अभी हम जब वर्चुअल एक्सपीरियंस बनाते हैं सो उसमें भी कुछ चैलेंजेस होते हैं जो वो टाइम पे चलता है, मतलब लुक्स ब्यूटीफुल एंड एवरीथिंग, स्टैटिक दिखता है एंड एवरीथिंग. सो वी ब्रॉट मोर लाइफ टू इट. अभी हमारा जो नेक्स्ट वर्जन आ रहा है उसके अंदर यू विल फील एज इफ यू आर इनसाइड दैट एनवायरनमेंट लिटरली. वो लेवल का डिटेलिंग हम ला रहे हैं उसके अंदर. विद गेमिफिकेशन तो हमने कब का कर दिया, बट हम लोग ज़्यादा पुश नहीं करते बिकॉज आई डोंट बिलीव इन एनी प्रोडक्ट दैट जो आपको साइट पे इंस्टॉल करने के लिए बहुत तामझाम करना पड़ेगा. डेवलपर को हम बोलेंगे एक मशीन ऐसा लगेगा, एक वो वैसा लगेगा. Right. बोले यार इतना तामझाम मैं क्यों करूँ इसके लिए. तो वी बिलीव एवरीथिंग हैज़ टू बी वेब एनेबल्ड. सो रिफाइंड वर्जन आने वाला है इसका बहुत ज़्यादा. ड्रोन टेक में बहुत सारा डेवलपमेंट होने वाला है अभी. सो फ्लाई टाइम इंक्रीज हो रहा है नॉन स्टॉप. हमने FPVs का यू नो जनरेशन है अभी. बहुत इंटरेस्टिंग वे में आप शूट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो कंटेंट. सो इट इज़ अबाउट कंटेंट आप कितना इंटरेस्टिंग बना सकते हो. एक सेल्स वाला कंटेंट और मार्केटिंग वाला कंटेंट. सेल्स वाला कंटेंट जो ऑन साइट तो चल ही रहा है, आप जो डिजिटल प्रेजेंटेशन दे रहे हो या इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन दे रहे हो. राइट. एंड मार्केटिंग में क्या चैलेंज है कि आपका अटेंशन स्पैन कितना 3 सेकेंड 5 सेकेंड जो भी इंस्टाग्राम पे अभी हो रहा है, तो आपका वो ग्रैब होना चाहिए कंटेंट. सो उसमें AI एंड ड्रोन टेक के साथ अभी CGI आपको पता है कितना ग्रो हो गया है. यस. सो उसमें काफ़ी इवोल्यूशन आने वाला है. एंड यू नो देयर विल बी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट AI. So we I was have about to ask you integrated- about that. Why are you being so humble? Why are you not नहीं, speaking so I about your believe कि newest 10 साइट features? पे इंस्टॉल होने के बाद मैं बात करता हूँ. Okay. So AI is going to you know take over. And if AI को लोग अभी भी देखते हैं ChatGPT, AI में क्या क्या हो गया है. मैं आपको एक बताता हूँ एग्जाम्पल. अगेन आई एक्सपीरियंस इट एज अ बायर. समझो मैं एक विजुअल टेक देख रहा हूँ, कहीं बैठा हूँ. आई एम लेट्स से माई ब्रदर, सो ही लिव्स इन लंडन. Okay. ही हैज़ सम स्पेयर मनी, ही वांटेड टू इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर्टी. तो मैंने उसको बोला देख यहाँ पे प्रॉपर्टी है, यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे ग्रो होगा. बट ही इज़ लाइक अरे कौन सा ब्रांड है, बनाएगा क्या, पक्का पैसा तो नहीं डूबेगा ना उसका. ये क्या 2 पैसा ज़्यादा दे देता हूँ यार, कोई अच्छे ब्रांड में डलवा. यू नो उनको एक वो ट्रस्ट चाहिए होता है. Correct. बट वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है, जब आपने जो कमिट किया वो डिलीवर किया. ब्रांड वैसे ही बनता है, जो भी आपने अब तक कमिट किया वो डिलीवर किया. आप क्वालिटी चीज़ दे रहे हो, यू आर गिविंग समथिंग बेटर. एंड यू नो ये सब चीज़ें जब देखता है तो ब्रांड डेवलप होता है. बट वर्चुअल रियलिटी में वो बताएगा कैसे कि मैं ट्रस्टवर्दी हूँ,
अभी जैसे एक डेवलपर है, उन्होंने बोला आदित्य हमने इसमें इतना एक्स्ट्रा पैसा खर्चा किया है टू बिल्ड दिस काइंड ऑफ मटेरियल, ये वॉल डाला हमने, ये बालकनी में ऐसे हमने वर्क किया है, ये टाइल्स हमने यहाँ से चूज़ किया है, तो आपका वर्चुअल टेक में कैसे बताओगे? तो उसमें एक ऑप्शन आता था हॉटस्पॉट, ऐसे क्लिक करो तो उसका इन्फॉर्मेशन खुलता है. करेक्ट. बट इवन आई टू फील दैट वो इंटरेक्शन में इतना फ्रेंडली नहीं है, मतलब वो क्लिक करके कितना पढ़ेगा बंदा. तो मैंने बोला करता कौन है अभी? तो बोला हमारा सेल्स वाला जब आता है अपार्टमेंट में तो वो उसका इंटेलिजेंस होता है कि वो यूज़ करके बता देता है. राइट. तो वी वर लाइक कि इसको कैसे हम बता सकते हैं, और साउंड डाल सकते हैं, एक पॉपअप वीडियो डाल सकते हैं. देन वी वर लाइक एक मैंने अवतार देखा उसका AI का, कैन वी अडेप्ट दैट एंटायरली इनटू दिस? वाओ. एंड वी डिड इट. हमने पूरा क्लोन करके डाल दिया सेल्समैन, वो एक्टिवेट होते हैं, पूरा रूम खुद समझा रहा है वर्चुअल एक्सपीरियंस में कि फ्लोर टू सीलिंग हाइट इतनी है आपका, दिस इज़ अ लेवल ऑफ डिटेलिंग दैट वी हैव वर्कड ऑन. तो वो बंदा बैठा है दूसरे कंट्री में देख रहा है, ओके मतलब ये सारी चीज़ मुझे मिल रही है. तो देन इट गोज बियॉन्ड स्क्वायर फीट रेट, कि मैं यहाँ पे 10 रुपये दे रहा हूँ, ये बंदा 15 मांग रहा है, कोई रीज़न के लिए मांग रहा है, वो ये क्वालिटी दे रहा है. करेक्ट. इट इज़ अबाउट हाउ ही प्रेजेंटेड. सो AI में आने वाला है जबरदस्त अभी. Superb. We are. You should see the lab that we are experimenting. Looking forward, buddy. Yeah. Looking forward. So, आप एक ब्रांड में सुनने वाले हो जल्दी, वो लाइव होगा, एंड it will be shared on our platform also. So looking forward, and I think the 100%. whole audience is looking forward. All the developers are looking forward to this. All the marketing heads, all the CMOs, the consumer is looking forward to this. So I think we are also looking forward. Super, Aditya. Aditya, quickly, Yeah. we move to the rapid fire section. Oh, I don't know how I'm gonna do it. So जो भी आता है डायरेक्ट दिल से आंसर करना. Okay. तो so it's a rapid fire round. Just some very quick questions, and जो पहला दिल में आता है वो आंसर. ठीक है, राइट हो रॉन्ग हो जो भी है, बट जो पहला दिल में आता है वो आंसर चाहिए होगा. सो लेट्स लुक एट द रैपिड फायर सेक्शन. हाउ मेनी रियल एस्टेट डेवलपर्स एंड प्रोजेक्ट्स? How many? ऐसे अभी मैनुअली काउंट तो नहीं किया है, बट गूगल स्ट्रीट व्यू पे हमारे 1.5 crore व्यूज है प्लस. Wow. That's Super. the last that we counted. Brilliant, man. Those are the number of views on street view. I must have done more than 3,000-4,000 odd drone shoots and 3,000-4,000 odd virtual experiences combined together. And this is since when we started. Yeah. And I mean those are the numbers. Brilliant, man. Brilliant. Oh God. Every day we are doing multiple shoots. That is huge, yeah. That while is we huge. talk, there are multiple shoots That happening is huge. across the country. So yeah, Superb. that's the number. Super. लेकिन अगर आदित्य ठाकुर द VR कंपनी का फाउंडर नहीं होता तो आदित्य ठाकुर क्या होता? कभी इसके सिवा कुछ सोचा ही नहीं, but I was a copywriter. Okay. My journey started as a copywriter. Okay. I used to love writing. Okay. So I would have done something in writing probably. Nice. So yeah, nice. कुछ लिख रहा होता मैं शायद अभी. शायद एक मूवी या कुछ. You never know. फेवरेट मूवी? Infinity Wars and Endgame. I don't know कितनी बार मैंने देखी है. Nice. So there's something that it generates in me. So Brilliant. yeah, that's my favorite movie. फेवरेट एक्टर? Amitabh Bachchan and Rajkumar Rao. Oh, wow. That's a good combination. Yeah. So I mean yeah, they inspire me. Super. फेवरेट क्रिकेटर? Favorite cricketer change होते रहते हैं यार, but Dhoni has always been constant. So yeah, let's say Dhoni. Superb. Your date of birth? 20th December. Nice. Favorite song? Favorite song? Dance of the Death by Iron Maiden. So yeah, that's a song when I feel low or anything, just लगा देते हैं and pump up हो जाता है. I would not sing that. That's a death metal. So yeah, that's my favorite song. Superb. So all the best, Aditya. Thank you so much. All the best for your future. I think you are doing fantastic for this Indian real estate industry. And I hope you continue doing that for the industry forever. Thank you so all much. the best for your journey in future. I would say that industry is doing a lot for us, because I always say that if real estate grows, we are growing, and it is one of the vertical though, but their product should sell so that we are able to there's so many people surviving on that market. So yeah, we are doing our bit and they are doing so much for the industry. Oh, so
Yeah. Superb. Thank you so much, Yash, for having me here. And I've seen you over the years. You have played multiple roles in this industry as well. And now what you're doing is amazing. Your trainings plus especially for real estate, the way you're organizing the market. I don't know if a lot of people know about it, but definitely people should learn a lot what you've been doing for that mid segment as well. So all the best to you as well, and thank you so much. Thank you so much, Wish you Aditya. best for this podcast as well. Thank you so much, Aditya. Thank you. So on this very humble note from Aditya Thakur, the founder of the VR company, let's wish him the best in future for all the contribution that he's done to the Indian real estate industry. And keep watching the next episode of Blind Spot. Blind spot. Blind spot. Blind spot. Blind spot.